So hi guys, my name is Shaik Maulik and we are having our third monthly meeting of our community Getting Rich. So in this meeting we are going to discuss about the basics of stock market कि कैसे क्या होता है एकदम ground level से up पे आएंगे ठीक है एकदम. So throughout the meeting like I would be showing you this PPT और किसी को भी कोई doubt होगा तो जल्दी से पूछ लेना ठीक है. Starting off, like I think Arnav has some experience with stock market, right, Arnav? Like I can't say like I have much experience. like भाई सभी कोई सीख ही रहे हैं सभी. Okay. So starting off, let's cut down some prejudices. ठीक है. First thing first, ये सोच सब लोग सोच के रहते हैं कि इसमें पैसा डालूंगा तो इसमें increase होगा या डूब जाएगा पूरा का पूरा पैसा. So the truth is कि whenever you are investing money, ठीक है, even if it's just 100 rupees or 1000 rupees, it can never go to zero. It can never ever go to zero unless there are two options. Number one, the Indian stock market goes down from 60,000 to zero or earth बर्बाद हो गया, ठीक है. These are the only two possibilities. Second of all is FOMO कि लोग सोचते हैं कि मेरे like you know our behaviors are a lot influenced by how our surroundings like people जो आस पास रहते हैं वो जो कैसे सोचते हैं उस पे डिपेंड होता है ठीक है. So that's more or less FOMO. FOMO means fear of missing out. And that's why if your parents are not investing, like if you are not like out of the line, you don't think of investing again. ठीक है, समझ आ रहा है? Yeah. And third point is लोग सोचते हैं कि मैं 100 रुपए डालूंगा उसके बाद ये 100 रुपए 10 लाख में हो जाएगा ठीक है. That's total bullshit. Total bullshit. Yep. So the truth is the पैसा in stock market is compounded ठीक है. Like किसी को CA रचना राणा के बारे में पता है? Anyone? Who? CA रचना राणा डे. पता नहीं. Okay, पता नहीं है ठीक है. Like I will tell you कि she is a YouTuber and also a CA who spreads out financial literacy. Yeah. Okay, all good. Courses बेचती है ना. नहीं वो तो सभी को ही बेचना पड़ता है भाई. हाँ ठीक है. So देखो, I personally learned the basics of stock market through this woman and she was like so easy at teaching things, right? So coming to the main point, stock market क्या है? Stock market ये जो stock market is nothing but a exchange of stocks like which buyers and sellers do, ठीक है. So the main thing is कि एक company stock market में list कैसे होता है, ठीक है. Suppose it's not like कि मैंने randomly एक startup खोल दिया and then it goes on to stock market. वैसा कुछ नहीं होता. फर्स्ट थिंग इज कि स्टॉक मार्केट में जाने के लिए एक कंपनी जो स्टार्टअप होता है उसको थोड़ा ग्रो करवाना पड़ता है. लाइक ऑडियंस बेस इंक्रीज करना पड़ता है, टेक्निकल मार्केट कैपिटलाइजेशन इंप्रूव करना पड़ता है, उस कंपनी को रजिस्टर्ड कंपनी में बदलना पड़ता है ठीक है. एंड आफ्टर दैट आफ्टर द कंपनी हैज ग्रोन अ लॉट यू कैन थिंक ऑफ गोइंग थ्रू आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ठीक है. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है ये मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता ठीक है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ उसके बारे में. And then it becomes registered in the stock exchange. ठीक है. Stock market and stock exchange are pretty much the same thing. Stock exchange मतलब यहाँ पे stock का अदला बदला होता है, like selling and buying. It's clear up till now? Guys. Yes. Okay. Yeah. Okay. Entire screen. Okay. I'm keeping my video off. Is that good? Yeah, sure. Yeah. Okay. So ये सभी को दिखाई दे रहा है? Yeah. Okay. So a company raises money ठीक है. Like कैसे raise कैसे like it's not like कि मैंने अकेला कंपनी स्टार्ट कर दिया and then I can just throw out my products actually. प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए भी पैसा लगता है, प्रोडक्ट्स को सेलिंग मार्केटिंग के लिए भी पैसा लगता है, उसको पैकेजिंग करने के लिए भी पैसा लगता है. ये पैसा इतना सारा पैसा कैसे आएगा ठीक है. द बेस्ट वे इज टू पिच इन्वेस्टर्स बिकॉज दे बिलीव कि ये जो मैं इनिशियल पैसा दे रहा हूँ वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा एंड दैट्स अ होल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग या इन ऑल जनरली. सो देयर आर जस्ट टू वेज लीगली जैसे कंपनी रेज करती है अदर देन द थर्ड वे व्हिच इज कि भाई लाइक फैमिली को कहते हैं ना भाई थोड़ा पैसा दे दे, वैसा होता है बट दैट्स नॉट लीगल एक्चुअली ठीक है. सो रेजिंग मनी में देयर आर टू वेज. फर्स्ट इज गिविंग शेयर्स ठीक है. लाइक शेयर बेचती है ना, सबने सुना होगा. या यस एंड यस
What you said is legal. क्या क्या What you said is legal. सुनाई नहीं दे रहा. Okay, shares. ठीक है, छोड़ो. Giving shares, number one, like buying shares actually, not giving shares. अच्छा. Second one is through debentures, ठीक है. So इसमें फर्क क्या है? अरे Okay. एक मिनट हेलो हाँ बोलो बोलो. ये इस मीटिंग के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पीपल वही है ना जो एसआईपी में है एसएमएम No. We have like getting rich के ज़्यादातर लोग हैं. अच्छा ज्यादातर अच्छा मिक्स है मतलब या like SIP पे कुछ लोग जो थे वो यहाँ पे ऐड हो गए. 3 or 4 अच्छा probably. नहीं एसआईपी पे मत ही हो रही है अच्छा. So coming to the main thing, what is stock? ठीक है. Stock मतलब stock देखो. Stock और debentures में फर्क क्या है? Debentures मतलब is a fancy way of telling you that you are selling bonds. ठीक है. Bonds मतलब the debt by company. मतलब company कह रही थी मुझे थोड़ा पैसा दो. I will give you returns in the like after the maturity period. ठीक है. And stock मतलब I will give you a part of my company for your invested capital. As simple as that. ठीक है. सो स्टॉक से क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. मतलब तुम कंपनी के टेक्निकली एक छोटे से पार्ट के ओनर बन गए. ठीक है. एंड स्टॉक एंड शेयर में फर्क ये होता है कि शेयर ग्रुप ऑफ शेयर इज कॉल्ड स्टॉक. ठीक है. कभी कभी लोगों ने स्टेक मतलब सुना होगा. स्टेक मतलब कितना परसेंटेज ऑफ स्टॉक ओन्ड बाय समवन इन अ पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है. एक पर्टिकुलर कंपनी में सपोज इंफोसिस सपोज रिलायंस में अंबानी ने कंप्लीट स्टेक ले लिया फिर 70%. मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है. So that means 70% of the all outstanding stocks, ठीक है, is owned by मुकेश अंबानी. ठीक है. यहाँ पे एक चीज नोटिस करने की बात है. What is the meaning of outstanding stock? कोई बता पाएगा? शंको, जानिश? Arnav, do you know? Yeah, can you repeat? What is the meaning of outstanding stock and stock? Outstanding stock. भाई देख नाम से कुछ और है but definition is something else. Okay, outstanding stock मतलब जितना एक्चुअली मार्केट में फ्लो हो रहा है. ठीक है. लाइक देखो स्टॉक ये मुझे भी पहले पता नहीं था. लाइक फर्स्ट थिंग इज कि सपोज यू आर इन्वेस्टिंग इन अ outstanding stock I think वो authorized stock होता है जो कि कंपनीज बेच चुकी होती है. जो शेयर outstanding stock is basically जो शेयर होल्डर्स के पास करंटली है. हाँ एग्जैक्टली. क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ स्टॉक रिमेन्स विद द कंपनी इटसेल्फ. लाइक उसको कोई बंदा ओन नहीं करता. वो कंपनी के पास वो इंट्रिंसिक स्टॉक वैल्यू होती है. ठीक है. सो दैट इज द लाइक डिफरेंस बिटवीन आउटस्टैंडिंग एंड ओनली स्टॉक. ठीक है. स्टॉक्स ब्रोकर के थ्रू खरीदा जाता है. लाइक पहले होता था कि लाइक अगले लाइक अराउंड 2005 जब डीमैट अकाउंट नहीं आया था तब होता था कि लोग पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरते थे and then it would come after like 30 days. एक स्टॉक का एक फिजिकल एक चीज आता था. ठीक है. फिजिकल. and now what comes is डीमैट लाइक T+2 में होता है सब कुछ. ठीक है. मैंने मतलब 2 दिन बाद ही आ जाता है. T+2 इन द सेंस कि ये लोग बहुत कंफ्यूज होता है लाइक इन्वेस्टिंग इज सपोज मैंने आज खरीद लिया फ्राइडे को एंड T+2 मींस संडे को आना चाहिए. बट इट केम ऑन ट्यूसडे. ठीक है. सो व्हाट द मीनिंग ऑफ T+2 इज कि टोटल वर्किंग डेज +2. मतलब सैटरडे संडे इज नॉट कंसिडर्ड एज वर्किंग डेज. सो सैटरडे संडे को अगर इफ समवन बाइज ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे एक्सक्लूड करके मंडे एंड ट्यूसडे को आता है. ठीक है. एंड इट आल्सो हैपेंस फॉर नेशनल हॉलीडेज आल्सो. तो ये क्लियर हुआ इतना तक? यप. ओके. सो डिबेंचर्स मतलब क्या होता है? डिबेंचर्स मतलब इज अ वेरी फैंसी नेम ऑफ सेइंग बॉन्ड्स. मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि दे जस्ट थ्रो आउट jargon and it's like they feel like I know these things, you know. So debentures मतलब फैंसी नेम फॉर बॉन्ड्स. डिबेंचर्स और स्टॉक में एक ही फर्क होता है कि इसमें फिक्स्ड रिटर्न होता है एंड इट हैज अ फिक्स्ड टाइम. ठीक है. मतलब एक फिक्स मैच्योरिटी वैल्यू होती है एंड देयर इज लेस रिस्क. वेरी वेरी लेस रिस्क. ठीक है. ओके. कौन ज्वाइन कर रहा है? ओके. सो हमने ज्वाइन किया. सो हम लोग बेसिक लाइक वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मेन थिंग्स ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. Okay. So Sorry for the lag. it's fine. ठीक है. Now bonds
और स्टॉक्स में डेफिनेशन का थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि बॉन्ड्स मतलब कंपनी पैसा मांग रही है, इंस्टेड ऑफ वो योर द कंपनी इज नॉट गिविंग यू अ परसेंटेज ऑफ इट्स ओन वैल्यू टू यू, नॉट वैल्यू इन द सेंस कि स्टॉक दे दिया, ठीक है। सो डिबेंचर्स मतलब बॉन्ड्स, ये क्लियर हुआ आई होप। ओके, सो लोग अक्सर कहते हैं कि मैं सोते सोते पैसा अर्न करना चाहता हूँ, एंड द फैक्ट इज इट्स वेरी मच ट्रू, बिकॉज सोते सोते पैसा अर्न किया जा सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग इज प्रॉब्ली द ओनली वे हाउ यू कैन अर्न इट, इन्वेस्टिंग इन द सेंस नॉट इन स्टॉक्स बट ऑल्सो इन कंपनीज एक्सेट्रा, क्योंकि लोग देखो लाइक मुकेश अंबानी, इन्फोसिस, लाइक हाउ डिड दे बिकम रिच, या सब लोग तो वॉरेन बफेट नहीं होते ना, सब लोग कुछ लोग होते हैं कि अपना अपना कंपनी खोलते हैं एंड देन they get the passive income from it and then they become like hugely massively rich. Yep. So you invest in a company and the होता क्या है, this is a cliche, your money works while you sleep, ठीक है। over the years जब कंपनी ग्रो होता है तुम्हारा पैसा उसके साथ कंपाउंड होता है, कंपाउंड एंड नॉट ग्रो, व्हाई? बिकॉज कंपाउंडिंग मतलब 100 रुपए पे अगर 10 रुपए का ग्रोथ हो रहा है पर ईयर, the first 100 रुपए will be become 110 in the first year, then it will become 121 instead of 120. इतना क्लियर हो रहा है क्या? ओके, ऑल गुड ऑल गुड। रिस्पॉन्ड करते रहना, मतलब मुझे समझ नहीं आएगा, बार बार खोलना पड़ता है। हाँ ठीक है, हाइड कर दिया, गुड, थैंक्स। सो हाउ मच एग्जैक्टली, लाइक कितना अर्न कर सकते हैं इसमें? एंड आई डिड रिसर्च अबाउट इट, एंड इंडिया का जो लास्ट 20 years, इफ आई कंसीडर फ्रॉम 2003 to 2023, ठीक है, so 2002 to 2022, the total growth was 9.8% and 10 years का 12.3% it was, okay. So एक ग्राफ दिखाऊंगा, I hope समझ आए जे कि हो रहा है, ठीक है। I think when you invest in stock market, Yeah. you're not really a fool. It's like what do you say? Funds, mutual funds, index funds. No, not mutual funds, not mutual funds. Investing in the big companies. या मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने की बात हो रही है। क्या ओहो हाँ सॉरी फॉरगॉट। यप, सो नाउ इसमें देख सकते हो कि क्या हो रहा है, ठीक है। आई एम टेकिंग दैट आई एम इन्वेस्टिंग 1000 रुपए एवरी मंथ, एवरी ईयर 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में मेरा रिटर्न आ रहा है इतना और मेरा ग्रोथ आ रहा है इतना, ठीक है। देखो प्रॉफिट आ रहा है जस्ट 98 रुपीज, 4 ईयर में इट गोज ऑन टू बिकम 1500 रुपीज, ठीक है। लाइक थोड़ा ग्रोथ देखो एकदम। उसके बाद 10 साल जब हो गए मेरे, ये 9.8 पे जा रहा है, ठीक है, लाइक 20 years बैक। सो 20 years बैक में जब मैंने सपोज इन्वेस्ट किया था, सो 21,000 मेरा 1000 पर ईयर आके भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है, देखो एकदम दुगना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, एकदम दुगना प्रॉफिट विदाउट इवन लाइक कैजुअल इन्वेस्टिंग। और 9.8 एक्चुअली नहीं था, मेरा 10.2 था, बट स्टिल आई प्लेड इट सेफ फॉर लाइक शोइंग यू। ओके, 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले भी मोटा मोटा सेम चीज, क्योंकि ओवर द इयर्स होता है कि कंपाउंडिंग का प्रॉफिट तभी आता है कि जब ज्यादा साल होते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि कितना अमाउंट ऑफ मनी दे रहे हो, अमाउंट ऑफ मनी ऑफ कोर्स मैटर्स, ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैटर्स, बट कंपाउंडिंग का सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज टाइम। या द मोर टाइम यू गिव टू समथिंग, द मोर इट ग्रोज, या एंड इट ग्रोज जस्ट मैसिवली व्हेन इट्स कंपाउंडिंग। बैम्बू ट्री का स्टोरी तो सबने सुना होगा, आई होप। यस, Yeah, that's a famous one. या लाइक पहले 4 साल में बैम्बू ट्री कुछ नहीं उगता, उसके बाद it just sprouts a little and then on the 5th like it takes 5 weeks to grow 90 feet tall. Yeah, so it's a lot like that. Peak rise आता है एकदम से, but I don't think One. you can relate that to stock. नहीं, it's definitely true for mutual funds. Like mutual funds में उतना ही बहुत कम profit आता है, and like I don't think mutual funds is a good option, like considering my current financial literacy. मैं कहूँगा इसके बारे में भी कहूँगा। Mutual funds पुराना हो गया। हाँ, that's true, because 3.3% का ग्रोथ भाई, वो तो लार्ज कैप में करूँगा तब भी 5% आएगा। You can easily get 12% return per year. Yeah, definitely. Without doing anything. Definitely.
मार्केट के बारे में, बट जो भी इसमें इन्वेस्ट करना तो वेरी सेफ ऑप्शन है। हाँ रुको आई विल बी टेलिंग यू द रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। मैं अभी बताता हूँ, अरे यार सर्च करना पड़ेगा। क्या पराग वो वाला था क्या? अरे नहीं, हाँ तो यू कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। या ओके क्या? व्हाट आर एनएफटी? ओके एनएफटीज मतलब वो हाँ प्लीज। ठीक है, so basically NFTs are called non-fungible tokens, and what do we mean by non-fungible is basically they cannot be replaced. Fungible means it can be replaced, and non-fungible means it cannot be replaced. So currently NFT can be anything. It can be a baseball card, it can be any art. So currently NFTs are like getting sold mostly in the form of art, and it's being I think it's traded in Ethereum. Most of the Yeah. right? Yeah. So that's the background of NFTs. So what's the point of buying an NFT if it doesn't give you profit? I don't personally, I don't think there's any point of buying a NFT like that way. If you are really if you really want a digital art piece for yourself, then you can buy an NFT. But that's not the main point of buying NFTs in today's date. In today's date, majority of the people just buy NFTs to get some profit out of it and then sold it to the next person. Exactly. Some of them have physical advantages too, like physical part. कुछ नहीं होता, like हवा में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। No, there are some of the premium ones like हाँ वो 3D वाले ना? Not 3D one. There are some specific one, but yeah, they're negligible in number. अच्छा। So let's continue with वो doubt clear हुआ NFT क्या है etc. Yeah. Yes. Okay. So continuing with our presentation, what is SENSEX and NIFTY? सभी ने I hope नाम सुना होगा, सभी ने, yeah. So stock, yeah, Nifty 50, yeah. So stock market indices मतलब क्या होता है कि stock market indices मतलब है कि something that measures the overall performance, ठीक है, like मोटा तुम कैसा perform कर रहे हो in a stock market. So that is what index is, ठीक है. SENSEX and NIFTY are only applied to Indian stock markets. For like USA stock market, there is S&P, Dow Jones, Russell 2000. There are a lot of things, ठीक है. So SENSEX is the main thing. SENSEX is I think Bombay Stock Exchange में ज़्यादा होता है, and NIFTY is in National Stock Exchange. Shanko, am I doing it right? Saying it right? Hi, की बोल तो. Okay. तो शंको तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, like बहुत बुरा माइक क्वालिटी है. So SENSEX होता क्या है कि SENSEX considers top 30 and NIFTY considers top 50. Generally मोटा market capitalization पे होता है. Market capitalization मतलब assets minus liabilities. Yep. So okay, I forgot to edit this out, but anyways, so कैसे invest कैसे करते हैं, ठीक है? Because that's the main point, right? Like इतना कुछ सीख रहे हैं तो कैसे invest करेंगे? Technically nowadays you can do it with online brokers like Zerodha, Angel, Grow, etc. बैंक खुद का अपना पोर्टल प्रोवाइड करती है, ठीक है, but they charge some fees every time you buy some stock, ठीक है, every time, every single time. Zerodha is like the best broker in India currently. पूरा का पूरा फ्री रहता है, बस वन टाइम एक मंथली चार्ज होता है, वन टाइम, दैट्स आल्सो वन टाइम कि 200 रुपए मंथली लगते हैं और KYC etc. एंड देन यू कैन बाय इट लाइक व्हेनेवर, लाइक कितना भी चाहो खरीद सकते हो, और बस इंट्राडे पे एक मार्जिन रहती है. सो द बेस्ट इंटरफेस, दिस इज पर्सनल, ठीक है, ग्रो का सबसे अच्छा इंटरफेस लगा मुझे अभी तक. ग्रो एंड वजीरेक्स आर जस्ट OGs. Best website for researching about stock market and financial is moneycontrol.com. इस एक वेबसाइट पे इतने एड्स आते हैं, but like it's just so full of information. Yep. और lastly screener मतलब कुछ किसको पता है screener मतलब क्या है guys? क्या? Yeah, exactly. Like stocks को filter करना कि कौन सा actually खरीदना है, ठीक है? That is what a screener is.
Ticker Tape is like one of the most best screeners because we are considering free options instead of paid. So how can you start? Actually under 18 अगर रहते हो तो नहीं कर सकते. Of course you can do it by. हाँ बोलो कह दो. If you open a custodial account under your parents' name, parents first need to open a brokerage account, and after that you can open up a custodial account and then buy stocks from it. Yeah, you can also do that. Yeah, that's true. Another way is you can like invest in stocks through companies registered in your name. Okay. There are some loopholes which Shanko, would you like to discuss? I would not like to discuss it because Okay. Okay. और second point जैसा मैंने लिखा है, I know unprofessional but still like कुछ like this happened with me, like my parents were a little bit financially illiterate क्योंकि उनको पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, and they're just like mad hell क्या कहूँ, like they so feared stock market कि stock market दूंगा मैं पैसा जल जाएगा etc. ठीक है. So I did convince them कि पैसा दो मुझे, मैं invest कर दूंगा तुम्हारे नाम पे, ठीक है. And it's good like थोड़ा मेरा खुद का personal experience भी बढ़ रहा है, ठीक है. So one thing you can do is manage your parents account or you can go paper trading. पेपर ट्रेडिंग में एकदम मजा नहीं आता. हाँ तब भी पेपर ट्रेडिंग में अच्छा आई फील यू बडी. ओके, पेपर ट्रेडिंग में होता क्या है कि यू जस्ट राइट अ नेम ऑफ स्टॉक इन पेपर एंड देन यू जस्ट देखते हो कि कितना परसेंट इंक्रीज करता है एटसेट्रा. इफ इट गोज इट्स गुड, लाइक एकदम आई डोंट नो इफ देयर इज अ बंगाली टर्म फॉर इट बट इट्स कॉल्ड दूधे बातें इन बंगाली. Like दूधे मतलब होता है ना कि when you take in, suppose you guys are playing, you guys are all 10 years old and suddenly you decide to take your 5-year-old brother to play with you. So you know the role of 5-year-old brother की ऐसा खेल ही रहे तो खेलो, मतलब उतना seriously नहीं लेता ना. So it's a little bit like that paper trading. Okay. So KPIs, like how good is a stock, like कैसे पता चलेगा कौन सा क्या स्टॉक है. So वो सवाल किसने पूछा था कि कैसे if someone is new mutual funds वाला. वो वाला क्वेश्चन कौन पूछा था जिसने कहा था कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इज गुड. गाइस भाई बहुत ऑकवर्ड फील आ रही है अकेले. अरे कोई सुन रहा है क्या? हाँ सुन रहे भाई, सुन रहे. हाँ यार हाँ. Okay. So what are the KPIs? KPIs मतलब key performing indexes, क्या देखना पड़ता है, ठीक है. So market capitalization मतलब value of outstanding shares. It depends on a lot of things. It depends on the subsector your company is in, and if it's tech, if it's good. In tech companies it should be above like 11 lakhs or something more, ठीक है. Outstanding value of outstanding share मतलब number of outstanding share into value of each share, ठीक है, मोटा. Next is EPS. EPS is a lot like मैं हमेशा EPS देखता हूँ, हमेशा whenever I am buying any stock or something. So EPS मतलब net earning मतलब like इतना profit कर रही है by number of outstanding share. EPS is proportional to profitability, and next up is P by E ratio या PE ratio कहते हैं, ठीक है. PE ratio मतलब price of stock को EPS से divide कर दो, as simple as that. EPS देखो PE ratio का एक बहुत अच्छा क्या रिलेशन होता है कि if your PE ratio is less than 20 or 15 or even like 1 minus में उतना नहीं जाना चाहिए क्योंकि that's very like very undervalued company. But if it is below 20 and above minus 10, it is technically considered as an undervalued company, and that's the whole point of value investing. कि undervalued company पे invest करते हो आप, and then suddenly after the years it suddenly gets its own value, and then it just explodes in money. Yep. क्या हो रहा है? 1 minute. Then it's good to invest in the value. Yeah. That's the whole point. I just remember I was talking about index funds. हाँ तो मैं इसकी बोल रहा था that किसी ने पूछा था recently, अभी क्वेश्चन किसी ने पूछा था that if someone doesn't know stock market तो वो कैसे
decide करेगा. So I सही. think you don't need to decide anything. You can just directly put your money in index fund. They will just grow. Average उसका return 12% per year रहता है. So I don't think you need to, yeah, ज़्यादा दिमाग लगाने की. हाँ, exactly. So कहने जा रहा था लोग फोन करें. So P ratio अगर 20 से नीचे होता है then it's considered to be an undervalued company. Another thing is book value. सभी ने I think नाम सुना होगा but probably they don't know what this is. Book value मतलब होता है कि assets minus liabilities, as simple as that. ठीक है. Next is our PB ratio. PB ratio मतलब price of stock by book value. If PB ratio is less than 1 or 1.5, it is also considered as an undervalued company. और ये सारे KPIs is available on any good stock screener. ठीक है. पेड में जाओगे तो हमेशा मिल जाएंगे. But in other words, टिकर टेप में ये सारे stock screeners free में available होते हैं. ठीक है. Like whenever I personally decide to invest in any stock, I first take up a date कि हाँ इस दिन मुझे ये काम करना है. And then I look at these stocks as per their like कैसे हैं. ठीक है. And then I go for the undervalued क्योंकि मैं purely value investing करता हूँ. And lastly, ROE, return on equity, is like RE, इसको क्या कहते हैं? CGPA या CGRA या क्या कहते हैं इसको? Like भूल जा रहा हूँ नाम. अर्णव क्या कहते हैं? ये वाले चीज को वो अरे नहीं 5 years का दिखाते हैं ना चेंज राइजिंग स्टॉक मार्केट. Okay. Anyways. So basically मैं जो कहना चाह रहा था कि there is another column where लिखा होता है कि कितना ग्रोथ होता है over 5 years या over 3 years. ठीक है. और रिलेटिविटी. ठीक है. ये वाला चीज शंख ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएगा क्योंकि वो ज्यादा इसमें देखता है. ठीक है. रिलेटिविटी मतलब सपोज एप्पल का न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो. शंख हाँ या ओके. शंको तू बोल ले बॉल ना लाइन बोल दे. Okay, so we are going to Bengali. Okay, no, like I just said. Okay, anyways. So relativity मतलब क्या होता है कि suppose Apple, you was watching Apple for a long time, ठीक है, and suppose you just see on paper that Apple is launching a new product on August 15. Yeah. So what you are doing is that तुमने बहुत अच्छे से देखा कि हाँ अभी तो 13 तारीख है, 15 को रिलीज करेंगे, तो I can just like मैं कुछ ये पूरा on basis like this is not technical, this is like खुद से कि हाँ 15 को रिलीज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि 14 को मैं अगर खरीद के लूंगा then 15 में I can have a spike on the price, right? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च होने के टाइम पे या कोई न्यू स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होने के टाइम पे हमेशा ऑलमोस्ट लाइक एनी बिग कंपनी हैज अ स्पाइक ऑन द टॉप लाइक ऑन देयर स्टॉक. ठीक है. इसका मजा छोटे पैसों में नहीं मिलेगा. ठीक है. बट शंख करता है. He invests around like 1 crore, 2 crore like casually. ठीक है. So like तब मजा आता है जब 1 crore पे 20% का हाई रिटर्न आता है. ठीक है. So that's the thing. Casually. कल ही उसके आए थे. He invested in Apple and he got like 20 or 30 lakhs. Okay. So compounding mindset. Well ज़्यादा कुछ बकने का नहीं है. Start investing real or paper. Trading isn't long term. क्योंकि ट्रेडिंग का बहुत चल रहा है कि रिसेंटली इंट्राडे ट्रेड करना है, शॉर्ट टर्म गेन करना है. शॉर्ट टर्म गेन इज ओनली गुड इफ यू हैव इनफ कैपिटल फॉर इट. ठीक है. 1000 रुपए पे 10% आएंगे. दैट मींस जस्ट 100 रुपए. दैट डजंट मीन कि 100 रुपए ही आएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी सोचते हैं कि 10% गेन होगा, इट डजंट मैटर कि 10% गेन होगा. अरे भाई हमारा तो 10% लॉस भी जा सकता है ना. सो बैकअप रख के खेलना चाहिए. ठीक है. whenever you are trading, and trading तभी करो जब इतना प्रोएफिशिएंट हो जाओ स्टॉक मार्केट में. ठीक है. सो ट्रेडिंग isn't like शॉर्ट कैपिटल होगा तो तब मत करो, कैपिटल ज्यादा होगा तब करो. ठीक है. एंड विद प्रैक्टिस यू विल गेट बेटर. सो थोड़ा मोटा करके कह रहा हूँ कि क्या है अदर देन जस्ट स्टॉक्स, ओनली स्टॉक्स. ठीक है. देयर इज इंडेक्स फंड्स, जैसे कि अर्णव ने कहा. व्हाट यू डू इन इंडेक्स फंड्स इज दैट इंस्टेड ऑफ जस्ट pointing out to just one stock in particular, you invest on the index itself. ठीक है. SENSEX 100, SENSEX 30, NIFTY 50, Junior B's 100. ठीक है. ऐसे बहुत सारे इंडेक्स फंड्स होते हैं. ठीक है.
you can invest in them. And इसका मोटा मोटा return like अभी तो in this years, in this last 5 years, it got like spiked up to 12% etc. But मोटा मोटा अगर even if I play safe, I will get more than 10 or 11. मोटा मोटा like मैं एकदम डाउन करके कह रहा हूँ 1%, 10%.